Good evening, students. How are you? I'm fine. Myself, Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, okay, how are you? I'm fine. Hope you are all fine. And as you all know that this pandemic situation is going on, this worldwide, the whole world is facing a lot of problems regarding this COVID-19. Okay, so in this situation, just we have to be very much coordinated. And we have to be very much conscious about the present situations. Don't go outside without any protection, and don't go outside without any urgent work. Okay, so if you have any kind of symptoms regarding this COVID-19, then please consult with the doctors, and just you can test also. Okay, so be safe and be healthy. Okay, so just in this lecture, just we are going to solve the different questions from the straight line chapter. So I think in the last lectures the different questions were solved regarding the straight line chapters, and the slope intercept form, the intercepting form of a straight line, and the normal form of the straight lines. Okay, so these are the formations of the different types of straight lines. Okay, so in this lecture, just we are going to solve very important and little bit tough questions also. Those who are very much important for the reference studies. Okay, so this question I think are not so important for the board exams, but for clearing the concepts, just if you want to clear the concepts regarding the straight line chapter, then I think you should solve this type of questions as well. Okay, just I am trying to make you confident in this chapter because it is the geometrical chapter. So geometrical chapter means geometry means concepts. Everywhere that you will see the very small concepts are there that you will see in the straight line chapter. Till now that we have got many more concepts, many more formations regarding the straight lines. Okay, so if you want to be very much confident, if you want to face the straight line questions, different types of straight line questions, then I think all of the formations and all of the formulas, all the topics and all the concepts should be inculcated in your mind. Okay, and it should be remembered first. Okay, it should be actually this it should be actually just inherited. Okay, so within you. Okay, so let's start our first question. Okay, so let's write the first question. Show that the lines 4x plus y minus 9 equals to 0. Show that the lines 4x plus y minus 9 equals to 0, x minus twice x plus 3 equals to 0, and 5x minus y minus 6 equals to 0. Okay, make equal intercepts on any line of gradient 2 Okay, so that means a straight line is there. एक straight line है आपके पास जिसका gradient 2 है. So what do you mean by gradient? Gradient means slope 2. Okay, so gradient is nothing but a slope of the line. Okay, gradient is actually the standard form, and gradient means actually if the angle will be positive, then it will be the gradient actually. Okay, so that means if any line makes an angle with the positive x-axis, then I think actually the angle will be the acute angle. Acute angle होगा 90 डिग्री से छोटा होगा. तो 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल अगर यूज करके आप स्लोप निकालेंगे तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो यहाँ पर ग्रेडियंट 2 दैट मींस मॉड स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है. सो जस्ट लेट अस टेक एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ग्रेडियंट 2 है. ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट किया है कुछ ना कुछ पॉइंट पे. ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं. लेट अस टेक एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग एज्यूम करेंगे. एक लेट अस टेक हैविंग स्लोप इक्वल्स टू 2. ओके, स्लोप 2 इज y इक्वल्स टू mx प्लस c. ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको मिला था स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 2 दिया है. दैट मींस y इक्वल्स टू 2x प्लस c.
C क्या है? C means the intercept on the y-axis. We don't know the value of C here, so we don't need. We don't need to find this C value. Okay, C is not required here, but according to the formulation C should be written, and that's why just we have written the C. Okay, C यहाँ पर लिखना जरूरी था. फॉर्मेशन में तो C है, y equals to mx plus C. ठीक है, C लिखना जरूरी था, इसलिए हमने C लिख दिया. बट कैलकुलेशन में C का कोई यहाँ पर यूजेस नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोग नॉर्मली ऐसे ड्रॉ किया. इसका पोजीशन हम लोग को जरूरत नहीं है निकालना. तो ये जो है y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस सी एक लाइन है. इस लाइन को 1 2 3 लाइन, इस फर्स्ट लाइन के इक्वेशन 4x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. इस लाइन के इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. इस लाइन के इक्वेशन 5x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तीनों लाइनें इंटरसेक्ट किया है. ओके, सो एक्चुअली जस्ट रिमेंबर वन थिंग, again and again just I am telling the same thing. We don't know the exact position of these three lines. Okay, so it actually this first line, it may intersect this line in this position also. It may be possible, but we don't know actually, no, because we actually just we didn't draw the straight lines with his exact position. Okay, we don't know the point of intersections and the points are. Okay, so it is just a rough figure. यहाँ पर जो है जितना सारा फिगर हम लोगों ने, ये राफ है. ठीक है, इधर उधर हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, जस्ट राफ है, फिगर को समझ में आ जाए वही. तो यहाँ पर ये पॉइंट, तीनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला. यहाँ पर P नाम दे दो, Q नाम दे दो, ये R दे दो. ठीक है, एक नाम भी दे सकते हो, ये AB, ये लाइन का नाम AB, ये नाम दे दो CB, ये नाम दे दो EF, ये नाम दे दो GH. तो our prime target is to find the intersecting points. ठीक है, ये intersecting points का coordinate निकालना है. So for that we need to solve these equations. Okay, so given lines, given थोड़ा complicated है, given lines तो थोड़ा ठीक तरह से देखो. 4x plus y minus 9 equals to 0. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके इक्वेशन नंबर 3 दे दो. और 5x माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसके इक्वेशन नंबर 4 दे दो. ठीक है, अब P पॉइंट निकाल रहे हैं. तो P पॉइंट मतलब कौन सा लाइन? ये तो AB वाला तो इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 आई थी. तो लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. सॉल्विंग 1 एंड 2. कैलकुलेशन थोड़ा जो है वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाए. ठीक है ना, ह्यूमन एरर हो सकता है. ठीक है, तो प्लस माइनस वैल्यूज थोड़ा वेरीफाई कर लेना, प्रोसेस ठीक तरह से नोटिस करना. ठीक है, अगर मिल जाए तो बहुत सही है कि नहीं? ऐसा जनरली नहीं होता है, बट हो भी सकता है इधर उधर प्लस माइनस देखने में गलती हो जाए. ठीक है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 आ जाओ. 1 मतलब देखो यहाँ पर ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 ये है, मतलब 2, ये दोनों ही तो सॉल्व करना है. दैट मींस ये, इसका नाम CB है, इसका नाम EF है, और इसका नाम GH है. तो 4x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0. बस यहाँ पर अगर मैं प्लस करूं तो आई थिंक y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो इधर 6x और इधर C माइनस 9, क्योंकि प्लस किया है हम लोगों ने. सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू C माइनस 9 बाई 6. सामने एक माइनस साइन रहेगा, तो माइनस लेके डील हम लोग क्यों करें? एक काम करते हैं, C माइनस 9 है ना, और पूरा सामने माइनस साइन है, तो 9 माइनस C लिख देते हैं. दैट मींस यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिला? 9 माइनस C बाई 6. सो फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू क्या था? ट्वाइस x प्लस C. दैट मींस y इक्वल्स टू 2 इंटू x मींस 9 माइनस C बाई 6 प्लस C. कैलकुलेशन थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं? ठीक है, एलसीएम करेंगे. 9 माइनस C प्लस 3C बाई 3 है कि नहीं?
सो तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल्स टू 9 प्लस 2c बाई, लो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो मिल गया, है नहीं? तो ये पॉइंट मिल गया, कौन सा है, क्या है ये पॉइंट, पी पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या मिला, 9 माइनस सी बाई 6 कोमा 9 प्लस 2c बाई 3, ओके, ये तो मिल गया। अब सॉल्विंग क्या है, 1 और 2 तो हो गया, 1 और 3 कर लो, ये पॉइंट मिलेगा, है कि नहीं? तो 1 और 3, 1 क्या है, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और x माइनस ट्वाइस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर, इसको 1 से करते हैं, इसको 2 से करते हैं, तो मिल जाएगा यहाँ पर देखो, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इधर है ट्वाइस एक्स माइनस 4y, ट्वाइस एक्स माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके बीच अगर मैं माइनस करूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, है नहीं? तो यहाँ पर प्लस 4y माइनस वाई, दैट मीन्स प्लस 3y, और इधर c माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y का वैल्यू मिला 6 माइनस c बाई 3, ये है y का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 निकल, फ्रॉम 1 क्या है, y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस सी, दैट मीन्स ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू y माइनस सी, y का वैल्यू क्या है, 6 माइनस सी बाई 3 माइनस सी, दैट मीन्स 6 माइनस सी माइनस 3c बाई 3, इधर ट्वाइस एक्स भी है, तो यहाँ पर 6 माइनस 4c बाई 3 ट्वाइस एक्स। तो ये काम करते हैं, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ पर 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, 3 माइनस 2c बाई 3, ये 2 कैंसिल, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 माइनस 2c बाई 3, ये है आपका x का वैल्यू। मीन्स ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोगों को मिल गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 माइनस 2c बाई 3, यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा इंटरटेनिंग हो रहा है, आप लोग कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके जो है वो लिख दो यहाँ पर, और y का वैल्यू मिला ये 6 माइनस c बाई 3, 6 माइनस c बाई 3, है कि नहीं? तो ये मिल गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर, थर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और 4 सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 4 सॉल्व करना है। तो जस्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 4 नाउ, ओके, 1 and 4। सो 1 क्या है यहाँ पर, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और 4 क्या है, 5x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो माइनस लेने से ये प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है कि नहीं? तो दैट मीन्स माइनस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर होगा c प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस c प्लस 6, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस माइनस तो कैंसिल, c प्लस 6 बाई 3, ये है x का वैल्यू। तो फ्रॉम 1 y equals to twice x, that means 2 into c plus 6 by 3 plus c. So that means 2c plus 12 by 3, or either 3c. That means y equals to 5c plus 12 by 3. y का वैल्यू भी बन गया। That means ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है c plus 6 by 3 minus 5c
प्लस 12 बाई, आपको प्रूफ करना क्या है, यहाँ पर प्रूफ करना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाया गया। इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब क्या होता है, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना चाहिए। दैट मींस लाइन का पोजीशन जो भी हो, ठीक है। अब 3 लाइन जब काटेगा किसी लाइन को, 2 टुकड़ा मिलेगा, 2 पीसेस मिलेगा। अब दोनों पीसेस का लेंथ सेम होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। अच्छा, कोई भी चीज अगर सपोज इस पेन को तुम तोड़ दो, ठीक है, उसमें बोला है जस्ट प्रूव दैट आफ्टर getting these 2 pieces, okay, just you are breaking this thing, no, so you will get 2 pieces, okay. So if the question will be like that, just prove that these 2 pieces will be same, these 2 pieces length will be same, ठीक है। तो यहां पर एक चीज इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं, 2 पीस कब इक्वल होगा, जब ठीक मिडिल पॉइंट में तोड़ते हैं उसको, है कि नहीं। अब स्केल लेके तो नहीं बैठेंगे ना, यहाँ पर ये लेंथ इससे ज्यादा है कि बीच में ही तोड़ दें, ठीक है ना। बीच में तोड़ने से क्या होता है, 2 इक्वल इंटरसेप्ट्स निकलता है। इंटरसेप्ट्स मतलब क्या होता है, लेंथ, काटने के बाद जो लेंथ निकलता है उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। तो 2 इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या है, 2 इक्वल इंटरसेप्ट इसका मतलब क्या है, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। यहां पर भी 2 इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। कब लेंथ सेम होगा, जब मिडिल पॉइंट पे काटेगा, मिडिल पॉइंट पे तोड़ोगे उसको, तभी तो 2 इक्वल इंटरसेप्ट मिलेगा ना, है कि नहीं। तो यहां पर देखो 3 पॉइंट मिला, दिखाई दे रहा है ना 3 पॉइंट। तो एक काम करते हैं, यहां पर अब सब तो मिल गया ना, पॉइंट्स तो सब मिल गया, तो यहां पर ये सब क्या देते हैं, 3 पॉइंट्स को अलग करके लिखते हैं। सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर, कैसे लिख लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर। फर्स्ट क्या है, 9 माइनस सी बाई 6, 9 प्लस 2c बाई 3, ये है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं जानते, बट ऐसे ही बोल रहे हैं हम लोग। 3 माइनस 2c बाई 3, 6 माइनस सी बाई 3, कैलकुलेशन थोड़ा वेरीफाई कर लिया, ठीक ठाक है कि नहीं। c प्लस 6 बाई 3, 5c प्लस 12 बाई 3 पॉइंट मिला। अच्छा, एक पॉइंट का नाम P, दूसरा का नाम Q, ये R दे देते हैं, PQR, ठीक है, PQR, ठीक है। अब तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट, अब प्रूफ तो करना है इक्वल इंटरसेप्ट है, दैट मींस कोई ना कोई पॉइंट तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट 2 एंड पॉइंट रहेगा, कोई ना कोई पॉइंट मिडिल में रहेगा, तभी जाके तो इक्वल इंटरसेप्ट बना, है ना नहीं। तो तीनों पॉइंट में कौन सा मिडिल में रहेगा, कौन सा 2 एंड में रहेगा, ये देख के आपको पता चल रहा है या नहीं, ये थोड़ा सोचिए, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, देखो यहां पर ये और ये दोनों का कोऑर्डिनेट थोड़ा, एक काम करते हैं, ये दोनों का कोऑर्डिनेट थोड़ा प्लस करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा है, ग्राफ में करो, 3 माइनस 2c बाई 3, ओके, प्लस c प्लस 6 बाई 3 होल बाई 2 है, मिडल पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट निकल रहा है। तो ये दोनों का मिडल पॉइंट निकल रहा है, तो ये x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट बाई 2 करने से मिडल पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट दोनों प्लस करने के बाद डिवाइड 2 करने के बाद ये कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो दैट मींस ये पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट होगा, किसका, Q और R का, तभी जाके इक्वल इंटरसेप्ट प्रूफ हो जाएगा, है कि? देखो यहाँ पर पहले देख लो, ये वेरीफाई करके होता है 3 माइनस 2ic
plus C plus 6 by 6. That means C हाँ 9 माइनस C by 6, यस आ रहा है. दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है प्लस करने से डिवाइड बाय 2 करने से P पॉइंट मिडल में आ रहा है. दैट मीन्स ये जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है ना, ये जो P Q R नाम दिया था, मैंने पहले भी ये बोला था, यहाँ पर पोजीशन जो है हम लोग नहीं जानते. यहाँ पर हम लोग ऐसे ही रफ स्केच ड्रॉ किया है. हम लोग का प्राइम टारगेट ये था, एनी हाउ दैट वी हैड टू प्रूफ, anyhow we had to prove that among these 3 points, these 3 intersecting points, any one of them lying on the middle. ठीक है, ये 3 पॉइंट मिला आपको, कैलकुलेशन करके तीनों पॉइंट मिल गया. अब तीनों पॉइंट में कोई ना कोई एक पॉइंट बाकी दोनों पॉइंट जो है ना उसका ठीक मिडल में लाई करता है. तभी जाके मिडल में अगर एक पॉइंट लाई करता है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम आएगा, इक्वल इंटरसेप्ट मिल गया ना. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि P पॉइंट ओरिजिनली यहाँ पर मिडल में लाई कर रहा है. तो हियर P is the middle point of Q and R. Okay, so that means अब ये फिगर थोड़ा मिटा दो उसको. ठीक है, जो ओरिजिनल फिगर है ये थोड़ा अगर आप ड्रॉ करें तो ये ऐसे that means ये होता है Q, ये होता है R और ये होगा P. तो that means ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम होगा क्योंकि P मिडिल पॉइंट है. तो इक्वल इंटरसेप्ट बना है ना, है. तो दैट मीन्स यहाँ पर की है, दैट मीन्स ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है और ये थर्ड लाइन है. ठीक है नहीं, देखो यहाँ पर फिगर पहले जो मैंने ड्रॉ किया था वो जस्ट रफ स्केच था, हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं जानते, है नहीं. तो यहाँ पर P पॉइंट मिडिल में आ गया. सो दैट मीन्स PQ इक्वल्स टू PR, है नहीं. सो इक्वल इंटरसेप्ट्स. दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि ये जो y इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस c, ये जो लाइन है, दिस लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स आफ्टर गेटिंग इंटरसेक्टेड बाय द 3 लाइन्स. ओके, दैट मीन्स एक लाइन इंटरसेक्ट हुआ है 3 लाइन से, तो तीनों लाइन से इंटरसेक्ट होने के बाद 2 इंटरसेप्ट मिलता है, 2 पीसेस मिलता है. अब दोनों पीसेस इक्वल होगा वो आपको प्रूफ करना है. तो इक्वल होगा हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया, इनडायरेक्टली उसको प्रूफ कर दिया. तो 2 पीसेस मिल गए, दैट मींस 3 पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्टिंग. तीनों पॉइंट में कोई ना कोई एक पॉइंट, एनी वन ऑफ दैट विल लाई ऑन द मिडल ऑफ दिस मिडल ऑफ द 2 पॉइंट्स. ओके, एम आई राइट नाउ? दैट मींस हम लोगों ने किसी तरह यहाँ पर प्रूफ किया कि P पॉइंट जो है वो Q और R का मिडल पॉइंट होगा. अब बोलोगे सर आपने ऐसे ही कैसे बोल दिया P पॉइंट मिडल? यहाँ पर देखो हम लोगों ने वेरीफाई किया है. आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हियर द मिडल पॉइंट ऑफ QR, निकाल लो. हियर द मिडल पॉइंट ऑफ द QR. मिडल पॉइंट कैसे निकालते हैं? QR का निकालना है x1 प्लस x2 बाई 2, ये मिलेगा. y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिलेगा. तो देखना कि मिडल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलने के बाद मिडल पॉइंट और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है. दैट मींस P पॉइंट Q और R के मिडल में लाई करता है. तो दैट मींस PQ PR सेम होगा. दैट मींस इक्वल इंटरसेप्ट्स बन गया. है नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Two vertices of the triangle are very complicated. Okay, and as so far I know, on YouTube, no channel is there where the different types of solving used to be provided. Just after starting this channel, that I had seen the different
channels regarding the mathematics subjects. Just I actually this different channels regarding mathematics, regarding physics, chemistry, for all the subjects. I have seen different channels, YouTube channels. And regarding my subject, I had given more pressure on them. Okay, because before starting the war, the battlefield, okay, so just we need to just verify whether there is any kind of channels are there or not, which may be better than me. Okay, so I had observed and I had seen many more channels, but I think no channel is there in this YouTube, on this YouTube platform, where this type of solutions and this type of guidance is to be provided to the students. Different types of solutions, different books are being followed in my channel. I think you will not see no other channel on the YouTube platform where this type of guidance are used to be provided. Okay, so please support my channel, okay, so that I can provide this type of videos and this type of lectures in the nearest future also, and so that I think you will face the different types of questions and different patterns from the different chapters, okay, in different exams. Okay, maybe actually this as a science student, this 11th and 12th class it is not the ultimate one. Okay, so it is the foundation. Okay, the board exam is the foundation, but you need to proceed further. Okay, you need to face the different, you need to confront the various hurdles and various things, various exams for getting shined. Am I right or not? Okay, so if you want to be shined, if you want to be a successful one and successful personality, then you will have to face different problems and different things, different exams, different competitive exams. Okay, so if you want to face the different competitive exams and different things, different hurdles in your life, then you have to be very much confident, and many more knowledge should be gathered from the different books and from the different lectures as well. Okay, if you have the knowledge, sufficient knowledge, then you can face the different things. You can face just you can face anything. Am I right or not? You can face anything, any problems. If any, that means any type of problems just can be confronted and can be faced after gathering more and more knowledge from my lecture, from the different books, from math, from blah blah blah, whatever it is. Okay, but the ultimate thing is that you have to perceive sufficient knowledge, more and more knowledge. Okay, regarding, and try to build your intellectuality and your intelligence also. Okay, just solving the questions and solving the different concepts and solving everything, it is not the ultimate thing. Ultimate thing is that actually this with your board marks, okay, it is not the sufficient. Okay, board marks, with the board marks you need to actually think about the competitive exams. Okay, so just you have to be very much focused, you have to be very much conscious, okay, about the JEE main exams and WT exams, etc., VIT and this IIT exams. Okay, then different types of courses are there, BBA, BCA, whatever it is, BPharm. So anything, just if you want to face this type of exams, then I think you need to perceive, you need to actually import the difficult knowledge and the depth knowledge from any chapter. Okay, just I am trying to do so. I am trying to do the same thing. Okay, just I am trying to provide more and more knowledge so that you can face the different exams and different things in your life. And I think no teacher is there on this YouTube platform, those who are providing this type of guidance to the students. Just you can verify also. Okay, after verifying these things, I am telling these things. Okay, so just I know very well, and that's why just try to support my channel and try to give the more encouragements to me, so that I will be motivated and I will be inspired also. Okay, so next question. Two vertices of the triangle are 3, -1. Two vertices of
triangle, two vertices of the triangle are 3 comma minus 1 and minus 2 comma 3, 3 comma minus 1 and 2 comma minus 3. Okay, and its orthocenter is at the origin, and its orthocenter is at origin. Okay, orthocenter is at the origin. Find the coordinates of the third vertex. Find the coordinates of third vertex. That means a triangle है. This triangle having three vertices, as you all know. So out of these three vertices, two vertices are given in the question, and the third vertex needs to be found. Okay. One another thing is given, and that is the orthocenter. What is orthocenter? Orthocenter मतलब है एक ट्राइंगल का 3 अल्टीट्यूड होता है. अल्टीट्यूड मतलब हाइट. एक ट्राइंगल का 3 हाइट होता है, ऐसा ऐसा ऐसा. तीनों हाइट जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थोसेंटर. आप लोग नोट देके लिख भी सकते हैं यहाँ पर नोट. द इंटरसेक्टिंग point of three altitudes of a triangle is called orthocenter. ठीक है, ऑर्थोसेंटर. दैट मींस अगर फिगर ड्रॉ करें ऐसे, ये एक हाइट, ये है दूसरा हाइट, ये है तीसरा हाइट, ये पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थोसेंटर. ठीक है, तो यही ऑर्थोसेंटर क्वेश्चन में बोला गया इज एट द ओरिजिन. दैट मींस 0,0. तो आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है यहाँ पर, है कि नहीं. तो अगर मैं यहाँ पर फिगर थोड़ा ड्रॉ करूं, एक ट्राइंगल है 3 comma minus 1, 2 comma minus 3, है कि नहीं. और A B C, तो ये एक ऑल्टीट्यूड है, ये एक ऑल्टीट्यूड है, तो ये 0,0 पॉइंट है कि नहीं. और ये भी एक ऑल्टीट्यूड है. ये तीनों जो है परपेंडिकुलर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑल्टीट्यूड है. तो ये पॉइंट 0,0 है. आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है. ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां पर आपको निकालना है कि नहीं. अच्छा, यहां पर एक काम करो, ये जो एक नाम ये पी दे दो. पी हियर ए सॉरी हियर बी 3, -1 and C 2, -3 are given as the vertex of triangle. Okay, here orthocenter equals to 0,0 है कि नहीं, ये हम लोग जानते हैं. नाउ इक्वेशन नहीं चाहिए. हियर स्लोप ऑफ पीसी का स्लोप निकाल लेते हैं, है कि नहीं. पीसी का स्लोप यहाँ पर निकाल लेते हैं. ये जो पीसी, ठीक है ना, ये लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं. 2 पॉइंट तो पता ही है आपको,
निकाल पीसी, मतलब y2 माइनस y1 दैट मीन्स 2, सॉरी y2 माइनस y1 पीसी है ना, तो -3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0 दैट मीन्स -3 बाई 2, ये स्लोप ऑफ पीसी, इसका स्लोप -3 बाई 2 है कि नहीं। सिंस एबी लाइन, ये जो एबी लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पीसी के ऊपर। देखो तो ये एबी लाइन जो है परपेंडिकुलर है ना पीसी के ऊपर है। सो स्लोप ऑफ एबी क्या होगा, स्लोप ऑफ एबी, एबी का क्या होगा, मैंने बोला था कोई भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको रेसिप्रोकल करना है 2/3 और सामने क्या साइन है, प्लस साइन है, उसको सॉरी माइनस साइन है, उसको प्लस कर देना। दैट मीन्स एबी का स्लोप होगा 2/3, ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है कि नहीं। कौन सा कंडीशन, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। m1 मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप, देखो -3/2 इंटू m2 का मतलब है सेकेंड जो लाइन का हम लोग निकालने -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 क्या होगा, साइड चेंज करके 2/3 में होगा क्या, देखो। तो इसको ये कैलकुलेशन ही हम लोगों ने डायरेक्ट किया है, टाइम थोड़ा बचाने। ओके, नाउ स्लोप ऑफ एबी मिल गया आपको 2/3। अच्छा यहां पर देखो, नाउ इक्वेशन ऑफ एबी अगर तुम्हें निकालना है, एबी का स्लोप पता है, एबी के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं, ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या, y माइनस y1 x माइनस x1, यही तो फॉर्मेशन है। आपको एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तो आपको तो यही फॉर्मूला यूज करना है। तो y माइनस y1, y1 कौन सा होता है, -1, m क्या है, x माइनस x1, दैट मीन्स y प्लस 1 इधर 3 और इधर ट्वाइस x माइनस 6। फर्स्ट अब थोड़ा ट्वाइस x माइनस 3y और इधर -6 तो ऑलरेडी है और इधर -3 भी आएगा, दैट मीन्स -9 इक्वल्स टू 0। ये मिल गया आपको एबी का इक्वेशन। एबी का इक्वेशन क्या मिला, ट्वाइस x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एबी का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देखो एसी का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर अब नेक्स्ट फॉर्मेशन यहाँ पर बनेगा। अब टारगेट है एसी के, एनी हाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसी है। नाउ अब एसी के इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग दूसरा प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नाउ स्लोप ऑफ पीबी, पीबी का स्लोप निकालो, पीबी सेम ही है, पीबी -1 -0 y2 माइनस y1 एंड 3 माइनस 0, दैट मीन्स -1/3। तो स्लोप ऑफ पीबी का -1/3। तो सिंस पीबी के साथ परपेंडिकुलर यहाँ पर एसी है, ये देखो एसी परपेंडिकुलर है ना, तो एसी का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ एसी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करो, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3, माइनस साइन है, प्लस साइन, दैट मींस प्लस 3। सो इक्वेशन ऑफ एसी, लो y माइनस y1 m x माइनस x। सो y माइनस y1 दैट मींस, अब देखो एसी ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो x1 y1 इसको हम लोग ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो लाइन के ऊपर होना चाहिए, उसको ही हम लोग x1 y1 इज्यूम करेंगे। सो y माइनस y1 m 3x माइनस x1, दैट मीन्स y प्लस 3 इक्वल्स टू थ्राइस x माइनस 6, दैट मीन्स थ्राइस x माइनस y, थ्राइस x माइनस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देखो ये मिल गया आपको एसी के इक्वेशन।
तो AB के इक्वेशन और AC के इक्वेशन दैट मींस थ्राइस x माइनस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो आपका टारगेट क्या था? A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। अब A पॉइंट कैसे मिलेगा वो तो? A पॉइंट यहाँ पर कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली AB का इक्वेशन और AC के इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, A पॉइंट मिल जाएगा। AB का इक्वेशन AC का इक्वेशन दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? A पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो दैट मींस AB और AC का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देते हैं, वही होगा A पॉइंट। सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ AB एंड AC बस 2x minus 3y minus 9 equals to 0, 3x minus y minus 9 equals to 0। तो यहाँ तो एलिमिनेशन अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको इंटू 1 इसको इंटू 3 कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 2x minus 3y minus 9 equals to 0, और यहाँ पर होगा 9x minus 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। माइनस 7x रेडी, तो 9 और 27 क्या होगा? इधर प्लस 18 होगा शायद, 18। So that means x equals to 18 by 7. X equals to 18 by 7. So किसी एक इक्वेशन में बिठा दो, x का वैल्यू y का वैल्यू मिल जाएगा। 2 into 18 by 7 minus 3y minus 9 equals to 0. That means 36 by 7 minus 3y minus 9 equals to 0. That means 3y equals to 36 minus 63 by 7. So that means 3y equals to 36। 63 से 36 माइनस करना है, 63 से 30 माइनस करने से तो 33 होता है, 33 से 6 माइनस करने से 27 होता है। मीन्स माइनस 27 by 7। Hence y equals to minus 9 by 7। So A पॉइंट क्या मिला? 18 by 7 minus 9 by 7। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दोनों क्वेश्चंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एक्चुअली दिस नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ओके, सो जस्ट इफ यू वांट टू मेक द क्लियर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स एंड द डिफरेंट actually puzzle regarding this chapter regarding the geometrical concepts, then I think you need to solve this type of questions where the different concepts are being used. Okay, the different procedure and the different things and different formulas, okay, are being used purportedly, okay, so that your brain and your intellectuality, your thinking, okay, will be grown. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके, बाय एंड जय हिंद।